Namaskar everyone. Welcome back to the amazing platform of Adhyalay. This is lecture number 2 on the topic biomolecules. So अभी तक हमने क्या सीखा था? What we had learnt up to now? Basics, right? We were trying to know about what all types of molecules we have in our cell, right? तो हमने पता करा था कि we can have bio macromolecule, bio micromolecule depending on the size, molecular weight, right? Then they can be organic in nature, they can be inorganic in nature, right? How did we do it? So we had done some analysis technique, right? We had done some analysis. We had used some analysis techniques. Elemental analysis we had done, molecular analysis we had done, right? And then finally we could find out these. Yes? So today, what are we going to discuss? We will be talking about the cellular pool, right? We'll be talking about biomolecules. But before I do that, let me just ask this if you have any doubts. किसी को कोई doubt है? Anyone wants to get their doubts clarified? Any doubts are there? Yes, no? Doubts are there? No? No, it's not there. Okay. So I hope you remember what we were learning, है ना? Biomolecules क्या होते हैं? इनके टाइप्स हमने देखे थे, मैक्रो, माइक्रो. Then how to find out the composition? We had mixed the living tissue, we had grinded the living tissue with the trichloroacetic acid, we had got a slurry, we had strained them, and finally we had got acid soluble and acid insoluble pool. Acid soluble was the filtrate, acid insoluble was the redentate, right? Then organic, inorganic compounds, we had taken the living tissue, we had burnt it. The ash was the inorganic compound. Yes? So we had seen the cellular pool. The cellular pool can have organic content, can have inorganic content. It can be having more molecular weight or it can have less molecular weight, depending on that macro or micro. Cool? So one more composition, cellular composition, if anyone asks you, cellular composition, cellular composition of macromolecule, macromolecule. Do you have any idea what is this? Macro means the bigger ones. So bigger ones are what? Are they amino acids or are they proteins? Bigger one will be what? The polymer. By combining the units, you get the bigger molecule. So tell me, amino acid will be a macromolecule or protein will be a macromolecule? I am talking about macromolecule. So tell me, protein I should put in macro or amino acid? You know, right, that amino acids, group of amino acids will make protein. Now looking at this, tell me, what do you think? Which one is going to be micro or which one is going to be macro? Is it going to be protein? Is it protein which is macromolecule or is it an amino acid which is macromolecule? Answer it. Yesterday I had taught this. Which one do you think should be macromolecule? Quick. What is macromolecule? Protein, because it is made up of combination of amino acids, right? So what is the composition? You can have water, you can have proteins. What else? Nucleic acid. What else? Carbohydrates. What else? Lipids. All these ions. These are the basic composition of the cell.
right? Water, protein, nucleic acids, carbohydrates, lipids, ions, right? So there is this table where you see the average composition of the cells. Now keep this in mind, one thing. This chapter I am not teaching you page by page. Okay? Because when you read this chapter, some information is there in the front page and some information is there in the back page. So the way I am teaching you, follow that. That will help you in understanding this chapter. It is very easy. But the only thing is the material, the content they have given here and there. That is all. Okay? So now I am showing you table 9.4. Average composition of the cells. Water, protein, carbohydrate, lipids, nucleic acids, ions. This is the percentage. You take any cell, 70 to 90% you are going to get water, 10 to 15% you are going to get proteins, 3% carbohydrates, 2% lipids, 5 to 7 nucleic acid, and 1% ions. Now, the challenge is that we need to remember this. We should remember this data. How will we remember this? Swati, do you remember it? आपको याद है? Data is learnt already? Yes, no? कुछ तो बोलो. So, since you are not answering, I am thinking that you don't remember it. Chalo. Let me make it very easy for you. You will remember it from now onwards always. Water is there, no? Which is in highest percentage. So there is this song, very old song by Honey Singh. How many of you have heard it? Aaj blue hai pani pani. How many of you have heard this? Yeah, heard it, right? Aaj blue hai pani pani. Chalo. तो आज blue है पानी पानी means पानी पानी पानी. आज blue है. Blue will represent water. ठीक है? Water. लिख दिया water. सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है. हमें पता है कि 70 to 90% water is there. आज blue है पानी पानी पानी. So now it is ending with पानी P. So write proteins. ठीक है? What's the percentage of protein? Can you see? It is 10 to 15%. Now can you see the end letters of proteins? Is it seeming like 10? Does it seem like 10? Teen, 10, teen, 10. So that can tell you 10 to 15%. Now protein ends with N. Take this N and write the next compound, nucleic acid. Nucleic acid. ठीक है? Now, in nucleic acids, just count the number of letters. 1, 2, 3, 4, 5. Write 5. Count the number of letters in nucleic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 5 to 7%. Cool. Now take this C. Nucleic ends with the letter C. Take this C. Write carbohydrates. Carbohydrates. So carbohydrates has car. C-A-R, car. Car has how many letters? Ma'am, 3 letters. Kitna percentage? 3%. That's all. Now rest, which you are going to get, are lipids and ions. So now it makes it very easy. Write it in decreasing order. 2%, 1%. Do you think now it is easy? आज ब्लू है, ब्लू इज वाटर 70 to 90%. सबसे ज्यादा पानी पानी प्रोटीन टीन 10 to 15. Ends with N, protein, nucleic acids. Ends with C, nucleic, carbohydrates, has 3 letters, 3%. Then write in decreasing order lipids and ions. Okay, so this is the average composition of cells in our body. These are the content which are present in our cell, and this is the percentage.
I hope you will remember it forever now. Okay? Yes? So that's that. Okay. Now what are we going to discuss? Our next topic is biomacromolecule. So do this or complete this as a homework, okay? Define biomacromolecule. So in the book, you will see there is a definition given for this, that the weight should always be greater than how many Daltons? How many Daltons? You have micro and macro. What is the weight of micromolecule? 18 to कुछ नहीं पढ़े 18 to 800 Daltons, right? Or you can say if it has molecular weight of less than 1000 Dalton, you can put it in micromolecule. You can put it in micromolecule. And if the weight is exceeding 1000 Dalton, that molecule will come under biomacromolecule. So learn the differences between biomacromolecule and biomicromolecule. ठीक है? We are going to learn now some of the biomacromolecule first. पहले हम क्या सीख रहे हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल. तो मैंने आपको ये सिखाया था ना, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैक्रो में आएंगे. सबसे बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आप तोड़ के बनाते हो शुगर, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो हो गया. प्रोटीन्स, जिसको तोड़कर ब्रेक डाउन करके आप बनाते हो अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड माइक्रो है, लेकिन प्रोटीन बड़ा है, मैक्रो. उसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स बड़ा है, मैक्रो. उसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, शुगर मिलेगा. तो वो आपका किस में आ जाएगा? माइक्रो में आ जाएगा. तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, दैट कम इन मैक्रो. उसको जब तोड़ देते हैं हम तो दैट कम्स इन माइक्रो. ठीक है? तो हम अभी पहले कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सीख रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है? तो चलो, पहला मैक्रोमोलिक्यूल जो हम सीख रहे हैं दैट इज प्रोटीन. ठीक है? तो अब प्रोटीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे बुक में, अब हम सब सीखेंगे. प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड पेज में भी दिया है, फिर फोर्थ पेज में भी दिया है, सिक्स्थ पेज में भी दिया है. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इंफॉर्मेशन. तो वी विल लर्न इट टुगेदर. कूल? चलो. सो प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? यू कैन सी हियर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के रिपीटेशन से ही बनता है प्रोटीन. ठीक है? तो हमें पहले अमाइनो एसिड्स के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज एन अमाइनो एसिड. हम बोलते हैं कि अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. इट इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. बहुत इजी है समझना. सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब पहले आपको मीथेन के बारे में जानना पड़ेगा कि मीथेन क्या है, तब जानेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट किया उसमें. तो पहले मीथेन जानते हैं हम. क्लास 10th में सबसे फेवरेट था ये, है ना. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो हमेशा उसका एग्जाम्पल मीथेन याद रखते थे, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना. मीथेन. अब हम अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और अपने कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे. तो क्या क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, बाकी सब हम चेंज करेंगे. एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा. देख लो आप, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए अमाइनो एसिड के, दिख रहे हैं ना. सब में हाइड्रोजन है. ठीक है? बाकी 3 को हमने चेंज करा है, बाकी 3 को चेंज करना है. ठीक है? तो चलो, कैसे चेंज करते हैं? हर अमाइनो एसिड में कुछ रिक्वायरमेंट्स है. क्या रिक्वायरमेंट्स है?
एक उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये? COOH। फिर एक उसमें अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, तभी तो उसका नाम अमाइनो एसिड पड़ा है ना? अमाइनो इससे पड़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड पड़ा, तो इसका नाम हमने दिया है अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप क्या है आपका? NH2। और एक क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो बनाओ कार्बन, एक COOH ऐड कर दो, एक अमाइनो ग्रुप ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन। चौथे का क्या करें? चौथा कोई भी हो सकता है। चौथा एक वेरिएबल ग्रुप होता है, जहां पे हम जो भी मन करे डाल सकते हैं। हमें मन कर रहा है कि हाइड्रोजन ही रखूं, रखो भाई, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपको मन कर रहा है कोई और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करूं, यू कैन ऐड। ठीक है, एनी एलिमेंट यू वांट। यहाँ पे जो आप चेंजेस करते हो, वॉट एवर चेंजेस यू मेक ओवर हियर, वही क्या होगा? नया नया अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है? सो आपके नॉलेज में कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को? हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स मेक प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए? कितने होते हैं? बिल्कुल सही, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स है जो हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स जो हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो चलो, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन हो सकता है? इसको ध्यान से देखो। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये तो होना ही है एक अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड होना ही है, एक हाइड्रोजन होना ही था। बस यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या कुछ इससे भी सिंपल हो सकता है? हाइड्रोजन से सिंपल कोई एलिमेंट नहीं, बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड विच इज ग्लाइसिन, विच इज ग्लाइसिन। अब इस H को मैंने थोड़ा बड़ा ग्रुप डाल दिया, CH3 डाल दिया, मिथाइल ग्रुप CH3। तो इस अमाइनो एसिड का नाम हो गया एलानीन। क्या नाम हो गया? एलानीन। नाउ मैंने एक OH ग्रुप ऐड कर दिया, मिथाइल के साथ OH कर दिया, हाइड्रोक्सी। केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, OH के लिए हम हाइड्रोक्सी टर्म यूज करते हैं। OH ऐड है मिथाइल ग्रुप में, तो बोलोगे कौन सा ग्रुप ऐड किया है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। आपको घबराना नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या होता है। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग नाम बन रहा है अमाइनो एसिड का। क्योंकि ये तीन तो फिक्स है ना, बस मैं चौथा ग्रुप को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो जब H था तो ग्लाइसिन, जब हमने मिथाइल ग्रुप डाल दिया तो एलानीन बन गया, जब हाइड्रोक्सी मिथाइल बनाया डाला तो सीरीन बोलते हैं इसको। तो ये तीन आपके अमाइनो एसिड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज द ग्लाइसिन। अगर कोई बोलेगा एल्कोहल वाला अमाइनो एसिड कौन है, तो एल्कोहल मतलब OH। तो आप आंसर क्या दोगे? सीरीन इज द अमाइनो एसिड जिसमें क्या है? एल्कोहल है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, मैं क्या बोल रही थी कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है जो हमारे प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलो उन अमाइनो एसिड्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं R ग्रुप, जो हमारा R ग्रुप है ना, जैसे कि एक तो COOH फिक्स है, एक हाइड्रोजन फिक्स है, अमाइनो ग्रुप फिक्स है। अगर मैं इस R ग्रुप में कुछ ऐसा ऐड कर दूं, C C C करके यहाँ COOH ऐड कर दूं, ठीक है,
ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, तो क्या आपके दिमाग में कुछ आएगा? या मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर देना। क्या मैं इस अमाइनो एसिड को बोल सकती हूँ ये एसिडिक अमाइनो एसिड है? यस और नो? क्योंकि पहले क्या था, पहले एक बेसिक ग्रुप था अमाइनो ग्रुप, दूसरा एसिडिक ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो पहले इक्वल था। अब मैंने इस अमाइनो एसिड में क्या किया है, ध्यान से देखो, 2 एसिडिक ग्रुप हो गए हैं और एक बेसिक ग्रुप है, तो कौन डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली एसिडिक वाला डोमिनेट करेगा। तो हम इस तरह के अमाइनो एसिड को क्या बोल सकते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड। समझ रहे हो? अगर मैंने सिमिलरली आर ग्रुप को कुछ ऐसा बना देती, मैं कोई बेसिक आर ग्रुप में मैं कोई बेस ऐड कर देती, सी सी सी, मान लो अमाइनो ग्रुप ऐड कर देती, ठीक है, तो अमाइनो बेसिक है आपका। अगर मैंने आर की जगह पे ये डाला रहता तो क्या होता? वो अमाइनो एसिड बेसिक होता या एसिडिक होता? बेसिक होता। क्यों? आपको आंसर पता है, क्योंकि एसिड ग्रुप एक था और बेसिक ग्रुप 2 हो जाता। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पे आप बता सकते हैं कि वो अमाइनो एसिड एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर इक्वल रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों इक्वल रहेंगे, 2 2 4 4, तो वो न्यूट्रल रहेगा, है ना, क्योंकि उनके पास इक्वल बेसिक चीजें हैं और इक्वल एसिडिक चीजें हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे आज के बाद पूछता है कि भाई साहब जरा बताइए एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, समझ गए? ये दोनों फिक्स है। इसके बाद मैंने इस आर ग्रुप में अगर खुद से ऐड कर दिया एसिडिक ग्रुप, तो भाई वो एसिडिक बन जाएगा। अगर मैंने इसमें बेसिक ऐड कर दिया, बेसिक बन जाएगा। अगर मैंने इसमें अल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिया, वो अल्कोहलिक बन जाएगा। अगर मैंने इसमें सल्फर ऐड कर दिया तो वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो जाएगा। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताओ जिसमें सल्फर है, तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, किसमें सल्फर होगा? हम सल्फर कहाँ ऐड करेंगे? ये 3 तो फिक्स है ना बच्चा, यहाँ कर ही नहीं सकते, तो बस यही जो आर ग्रुप था यहाँ पे सल्फर ऐड करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो ऐड करते हो वो नेचर हो जाता है अमाइनो एसिड का। ठीक है, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं अमाइनो एसिड के ऊपर। ए बी सी, 3 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। पहला डायग्राम देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे H लिखा हुआ है, मतलब समझते हो ना कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समझते हो ना ये चीज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बट हमने यहाँ नहीं लिखा है, साथ में लिख दिया, कार्बन के साथ में लिख दिया। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ, यहाँ पे NH3 प्लस में है, NH3 प्लस, ये जब ये NH2 था तो देयर वाज नो प्लस साइन, अब एक H इसमें बढ़ चुका है, देयर इज अ प्लस साइन because it has a tendency to now give, it has a tendency to give, क्योंकि होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, NH2 होना चाहिए था, हो क्या गया है NH3, तो ये क्या बोलेगा कि मैं दे सकता हूं, I have the tendency to give, इसलिए प्लस साइन रहता है उस पर, मैं दे सकता हूं प्लस साइन। ठीक है, अब देखो इधर सी डायग्राम को देखो, NH2 है, ठीक है, ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो COO माइनस है, COO माइनस, मतलब ये क्या बोल रहा है, मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, H चाहिए, क्या चाहिए, H। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी रह सकते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इस फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है, एंड अमाइनो एसिड इस फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये फॉर्म देखो क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे
माइनस साइन है। जब एक ही अमाइनो एसिड में आपको प्लस साइन भी दिखे और माइनस साइन भी दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? Zwitter ion form. What is Zwitter ion form of an amino acid? When amino acid has the both positive charge and negative charge. जब दोनों चार्जेस होंगे ना तो हम उसको Zwitter ion form बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो सिर्फ नेगेटिव है। अमाइनो एसिड अगर उनमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो आप खुशी खुशी बोल सकते हैं कि व्हाट इज इट? इट इज ज्विटर आयनिक फॉर्म। इज इट क्लियर? समझ में आया ज्विटर आयन क्या है? जब उनमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। एक बार रिकॉल कर लो क्या पढ़ा। हम प्रोटीन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पता चला कि ये बनता है अमाइनो एसिड से, तो बोला चलो भाई पहले अमाइनो एसिड को देख लेते हैं। पता चला वो बनता है मीथेन को कुछ कुछ करने से, तो फिर मीथेन के स्ट्रक्चर को देखा, फिर देखा उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। देखा कि 3 चीज को फिक्स रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ उसमें, ये चीज थी ना आपकी, इस हाइड्रोजन को हटाओ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, इस हाइड्रोजन को हटाओ अमाइनो ग्रुप लगाओ, इस हाइड्रोजन को रहने दो। ये 3 चीज को अब फिक्स हो गया और यहाँ पे जो मन है वो ऐड करते जाओ और उसके बेसिस पे ही हम 20 अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, वही 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। गॉट इट? यस। सुनो, अब ये अमाइनो एसिड मिलके बनाने वाले हैं प्रोटीन, 20 अमाइनो एसिड, राइट? 20 अमाइनो एसिड्स। 2 टर्म सुनो ध्यान से, चलो 2 क्या 3 सुनो ध्यान से। एक है आपका पॉलीमर, दूसरा है आपका होमोपॉलीमर एंड तीसरा है आपका हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, केमिस्ट्री में भी पॉलीमर चैप्टर है, बहुत छोटा सा, क्लास 12 में पढ़ना है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल मिलकर वो मॉलिक्यूल को बनाए हैं। पॉली मतलब, पॉली का मतलब मैनी, मर मतलब मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब मोर देन वन, है ना, मैनी। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, आप उसको पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर? अगर एक ही तरह की मॉलिक्यूल बहुत बार रिपीट होके बनाई है तो होमोपॉलीमर बोलोगे। होमो का मतलब क्या होगा? सेम। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होकर पॉलीमर को बनाती है, होमोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर में मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हाँ, मिलके बना रहे हैं। अगर ये सेम है तो होमोपॉलीमर बोलोगे। मान लो ए ए ए सब ए मॉलिक्यूल है तो होमोपॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? होमोपॉलीमर। लेकिन अगर मैंने एक भी चेंज कर दिया इसमें, एक भी मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो गया, आई कैन नॉट कॉल इट एज होमोपॉलीमर। मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा? हेटेरोपॉलीमर। एक भी मॉलिक्यूल अगर चेंज हो गया देन आई हैव टू कॉल इट हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, अब सुनो, इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं जो अकेले अकेले हैं एंड देन मिलते हैं और पॉलीमर को बनाते हैं? ये सिंगल मॉलिक्यूल है ना, तो इनको हम मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। जब मोनोमर आपके सेम होंगे तो होमोपॉलीमर बोलोगे। मोनोमर अगर एक भी अलग होता है तो आपको इसको हेटेरोपॉलीमर बोलना पड़ेगा। हम सीख तो रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है वो बताओ। इतना तो हम जानते हैं कि प्रोटीन पॉलीमर है क्योंकि वो बहुत सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल से बना है। क्या वो होमोपॉलीमर है, क्या वो हेटेरोपॉलीमर है, वो मेरा क्वेश्चन है। तो प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, मतलब
कोई ना कोई अमाइनो एसिड उसमें जरूर होगी जो अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे एक ही अमाइनो एसिड मिलेंगे और एक प्रोटीन बनाएंगे। कोई ना कोई एक अमाइनो एसिड अलग होगी, ठीक है। सो प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर, प्लीज कीप दैट इन माइंड। प्रोटीन क्या है आपका? हेटेरोपॉलीमर है, ठीक है, हेटेरोपॉलीमर। चलो इतना तक तो सीख गए हम। ज्विटर आयन क्या होता है, फिर एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड कैसे बनता है। सबसे बेसिक अमाइनो एसिड आपका ग्लाइसिन है, ये सब सीख लिए। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, उनके बारे में थोड़ा सीखेंगे। उनका नाम क्या है, कौन कौन से अमाइनो एसिड एसिडिक है, कौन वाले बेसिक है, फिर किसमें अल्कोहल है, किसमें सल्फर है, ये सब सीखेंगे। इन अमाइनो एसिड्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। वो क्या है, व्हाट आर दे? एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड दूसरा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड तीसरा भी जान लो, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये 3 तरह के अमाइनो एसिड्स हमने क्लासिफाई किया। क्या डिफरेंस है तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग दीज 3? इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि आपको ये खाना के साथ लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इट थ्रू डाइट, फूड के साथ लेना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है, हमारी बॉडी इसको खुद से सिंथेसाइज नहीं करती है। आवर बॉडी डज नॉट सिंथेसाइज दिस। तो आप इसको कैसे खाओगे? बाहर से खाओगे, फूड के थ्रू, सप्लीमेंट लोगे। कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है? 10, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हो जाएंगे फिर, जो बचे हैं? 10, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बना लेती है, हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम सेमी इसेंशियल कहां से लेकर आए, ठीक है। तो पहले ये जानो कि सेमी इसेंशियल का मतलब क्या होता है। सेमी इसेंशियल में क्या होगा, बॉडी उस अमाइनो एसिड को बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। बॉडी कैन मेक इट, ठीक है, बॉडी कैन मेक। लेकिन वो इतना स्लो बनाते हैं ना, प्रोसेस इतना स्लो होता है बनाने का कि कोई काम का नहीं है वो। हमें अभी चाहिए, बॉडी बोलेगा रुक रुक, देता हूं, वो रुक 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 मतलब रुके ही रहो फिर, ठीक है। तो बॉडी विल मेक इट, लेकिन बहुत स्लो बनाती है बॉडी, प्रोसेस इज वेरी स्लो। कैन मेक बट इट इज वेरी स्लो, दैट्स वाई इसको भी हमें खाने से ही लेना पड़ता है। देयरफॉर वी विल टेक इट थ्रू फूड, खाने के थ्रू ही लेंगे, ठीक है। तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल तो हमें हमारी बॉडी दे देती है, इसेंशियल हमारी बॉडी नहीं देती है, तो हमें खाना से लेना होता है। सेमी इसेंशियल हमारी बॉडी ट्राई तो जरूर करती है, लेकिन फेल हो जाती है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ जो हम फूड से लेते हैं ना, हमने इसको कहाँ ऐड कर दिया है, इसेंशियल में ही ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको फूड से लेना पड़ता है। तो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाउ मेनी? 2, ठीक है, जिसको हमने कहाँ ऐड कर दिया है, इसेंशियल वाले में ही ऐड कर दिया है। तो मतलब असलियत में हमारे कितने इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनाती है? 8, ठीक है, 8 + 2,
8 एकदम प्योर इसेंशियल है, बॉडी बिल्कुल नहीं बनाती है, और 2 सेमी इसेंशियल है, बॉडी बनाती है लेकिन बहुत स्लो बनाती है. ठीक है, so that is your essential, non-essential and semi-essential amino acids. Any doubts still here? यहाँ तक कोई डाउट्स है? ठीक है, तो पूरा बेसिक पढ़ लिया हमने. कोई डाउट है तो बताओ. अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इनके लिस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, एंड 20 अमाइनो एसिड्स के नाम सीखेंगे. एंड जितना भी हो पाएगा प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे. प्रोटीन के बाद वी विल डिस्कस एंजाइम्स. ठीक है, तो प्रोटीन एंजाइम्स होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, so that is all for today. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. Bye.